Hello everyone and welcome back to K Gutte's online lecture series. Today we are going to deal with BA BCom BSc first year topic, semester number 2, unit 5, and the name of the topic is Annihilation of Caste. This topic or this essay, actually it is a speech, undelivered speech written by Dr. B.R. Ambedkar. In background, we'll have some information about the author. Dr. B.R. Ambedkar, that is Bhimrao Ramji Ambedkar, he was born on 14th April 1891 and he was died on 6th December 1956. He was known as Babasaheb Ambedkar. He was an Indian polymath, philosopher, jurist, economist, politician, social reformer, journalist, writer, sociologist and anthropologist. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्ति थे जो फिलोसोफर, जूरिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंस्पायर्ड दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एंड campaigned against social discrimination towards the untouchables or Dalits. He was British India's Minister of Labour, Chairman of Constituent Drafting Committee, Independent India's first Minister of Law and Justice, and Dr. B.R. Ambedkar is considered as the chief architect of Indian Constitution. Dr. Babasaheb Ambedkar was a prolific student, earning doctorals in economics from both Columbia University and the London School of Economics, gaining reputation as a scholar for his research in law, economics and political science. In his early career, he was an economist, professor and lawyer. उन्होंने डॉक्टरल रिसर्च की है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में और लॉ में पढ़ाई की है. वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं. His latter life was marked by his political activities. He became involved in campaigning and negotiations for India's independence, publishing journals, advocating political rights and social freedom for Dalits and contributing significantly to establishment of the state of India. In 1956, he converted to Buddhism, initiating mass conversion of Dalits. उन्होंने 1956 में धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म अपनाया. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने बौद्ध धर्म की भिक्षा ली. 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया बहुत सारे अपने अनुयायियों के साथ. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, ही वॉज कॉन्फर्ड भारत रत्न posthumously उनके मरणोपरांत in 1990. Dr. Ambedkar has written several books. Which are these books? He has written The Problems of Rupee, Its Origin and Its Solution, Thoughts on Pakistan, Who Were Shudras, Riddles in Hinduism, and The Buddha and His Dhamma. These were some of the famous books written by Dr. Babasaheb Ambedkar. So, Annihilation of Caste is an undelivered speech
written in 1936. He wrote Annihilation of Caste for the meeting of a group of liberal Hindu caste reformers in Lahore, Jat Paat Todak Mandal, Lahore. After reviewing the speech, conference organizers revoked Ambedkar's invitation. He then self-published the work which became an immediate classic. ये जो स्पीच है ये अनडिलीवर्ड स्पीच है। 1936 में लाहौर में जात पात तोड़क मंडल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने यहाँ पे स्पीच देने के लिए, हिंदू धर्म के ऊपर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया। और इस स्पीच के लिए उन्होंने ये जो ड्राफ्ट है उन्होंने लिखा और उसकी एक कॉपी उन्होंने उसको पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन ऑर्गेनाइज़र को भेजा। और इसके बाद ऑर्गेनाइज़र्स में जो कर्मठ कुछ लोग थे, हिंदुइज़्म से रिलेटेड जो लोग थे, उनको कुछ अंश इसके अच्छे नहीं लगे और इन्होंने दे आस्क्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टू remove some part of this speech, and again they wanted to have some changes in this undelivered speech. And Dr. Baba Saheb Ambedkar was not ready to make changes in this speech. Even he was not ready to change the comma, and that's why Dr. Baba Saheb Ambedkar he published this text by his own, and in a letter dated 12th December 1935, the secretary of Jat Paat Todak Mandal, the secretary for the abolition of caste system, ये जो जात पात तोड़क मंडल है उनका जो 12 दिसंबर 1935 का एक पत्र है, और एन anti-caste Hindu reformist organization based in Lahore invited Dr. Ambedkar to deliver speech on the caste system in India at their annual conference in 1936. 1936 की ये कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसका पत्र उन्हें 12 दिसंबर 1935 ये तारीख को उनको ये भेजा गया पत्र मिला। उसमें उन्होंने इनको आमंत्रित किया जो उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, वो उसका जो विषय था वो विषय जो द कास्ट सिस्टम इन इंडिया ये विषय था, इसके ऊपर उनको स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया था। अंबेडकर रोट द स्पीच एज एन एसे अंडर द टाइटल ऑफ एनाइलेशन ऑफ कास्ट एंड सेंट इन एडवांस टू द ऑर्गेनाइजर्स इन लाहौर फॉर प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और उन्होंने ये जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट ये जो ऐसे है उन्होंने एडवांस में लिखा इसको और ऑर्गेनाइजर को इन्होंने भेजा, जैसे कि हमने अभी चर्चा की है, उन्होंने भेजा ताकि उसका प्रिंटिंग की जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाए। द ऑर्गेनाइजर्स फाउंड सम ऑफ द कंटेंट टू बी ऑब्जेक्शनेबल टुवर्ड्स द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजन, सो दे वांटेड सम पार्ट ऑफ दिस स्पीच हैज टू बी रिमूव्ड। दे रोट डॉक्टर अंबेडकर seeking the removal of sections which they found in their words unbearable. They wrote a letter and they said in this letter to remove the unbearable part of this letter. Ambedkar declared in response that he would not change a comma. These are the exact words. He said that he would not change a comma of this text. After much deliberations, the committee of organizers decided to cancel their annual conference in its entirety because they feared violence by Orthodox Hindus at the venue if they held the event after withdrawing the invitation to him. Ambedkar subsequently published 1,500 copies of the speech as a book on 15th May 1936 at his own expense as Jat Paat Todak Mandal failed to fulfill their word. और इस वजह से कि
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो ड्राफ्ट था, भेजे हुआ ड्राफ्ट लाहौर में ऑर्गेनाइजर्स को भेजा, उनको इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल पार्ट लगा, उन्होंने कहा कि ये उनके हिसाब से वो ऑब्जेक्शनेबल था, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते थे और उन्होंने कह दिया कि मैं इसमें एक कॉमा भी बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। और ऑर्गेनाइजर्स ने ये जो कॉन्फ्रेंस थी 1936 की, ये कॉन्फ्रेंस ही उन्होंने रद्द कर दी क्योंकि इसमें कुछ वायलेंस या अप्रिय घटना होने की संभावना थी। सो ऐसा क्या था इस एसे में कि ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दे नेवर वांटेड टू डिलीवर दिस स्पीच इन दिस कॉन्फ्रेंस, दे वांटेड टू हैव सम चेंजेस इन दिस स्पीच। क्या ऐसी बातें थे इसमें, क्यों ऐसा वो चाहते थे और क्यों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनको ये जो एसे है खुद को पब्लिश करना पड़ा। इसके 1500 कॉपियाँ खुद उन्होंने पैसे खर्च करके इसको पब्लिश किया और उसके इमीडिएट बाद इतना वो पॉपुलर हुआ, एज अ इट वाज कम आउट एज अ क्लासिक। एंड इन दिस एसे अम्बेडकर क्रिटिसाइज्ड द हिंदू रिलीजन, इट्स कास्ट सिस्टम एंड इट्स रिलीजियस टेक्स्ट। इन्होंने इस एसे में, इस अनडिलीवर्ड स्पीच में हिंदू धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी की है। इट्स कास्ट सिस्टम, इसकी जो जाति प्रथा है इसके ऊपर उन्होंने भाष्य किया है और हिंदू धर्म के कुछ रिलीजियस टेक्स्ट है उसके ऊपर उन्होंने भाष्य किया है, विच आर according to him this Hindu religion and caste system and its religious texts which are male dominant and spreading hatred and suppression of female interests. He argued that intercaste dining and intercaste marriage is not sufficient for annihilation of caste system, but the real method of breaking the caste system was to destroy religious notions. लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये कुछ चीज़ें जो इंटरकास्ट डाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिज और ऐसे कुछ जो उपाय है ये काफ़ी नहीं है। ये जातीय प्रथा नष्ट करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए he wanted to destroy the religious notions. उनको ऐसा लगता था कि इसके लिए उनको कुछ जो धार्मिक अवधारणाएं हैं या कुछ धार्मिक रिलीजियस नोशंस है, धारणाएं हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है, ऐसे उन्हें लगता था। जो धारणाओं के ऊपर कुछ प्रथा परंपराएं हैं जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे उन्हें लगता था। जैसे अस्पृश्यता है या अनटचेबिलिटी है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो ये कास्ट सिस्टम की वजह से है, ऐसे उनको लगता था। Though this essay has brought out evils of caste system and has given a complete analysis as to how caste system can be annihilated, लेकिन इस essay में उन्होंने ऐसे कुछ evils of caste system इसके बारे में बताया है and he has analyzed how to abolish the caste system, how to annihilate caste system, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और ये जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने स्पीच ये पब्लिश करने के बाद महात्मा गांधी क्रिटिसाइज डॉक्टर अंबेडकर्स एसे ऑन वेरियस ग्राउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही क्रिटिसाइज्ड हिज सेलेक्शन ऑफ हिंदू टेक्स्ट्स, इग्नोरिंग द टीचिंग्स ऑफ हिंदू सेंट्स एट्सेट्रा। तो ये स्पीच पब्लिश होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर कुछ टीका की और उन्होंने ऐसा कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके जो कुछ हिंदू टेक्स्ट है जो सिलेक्शन किया है और कुछ टीचिंग्स जो है कुछ इग्नोर किया है, ये हिंदू टीचिंग्स को और हिंदू सेंट्स को जो अच्छे विचार समाज में प्रकट करते हैं, और उन्होंने जो कुछ अच्छे ग्रंथ है उसको उन्होंने ध्यान में नहीं लिया, ऐसे उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी। इन हिज रिप्लाई टू महात्मा गांधी's criticism, Dr. Ambedkar wrote, annihilation of caste
विथ रिप्लाई टू महात्मा गांधी। और उन्होंने इसका एक नया संस्करण लिखा, महात्मा गांधी जी को उन्होंने उसका रिप्लाई दिया और एनाइलेशन ऑफ कास्ट विथ रिप्लाई टू महात्मा गांधी, इसका संस्करण उन्होंने सामने लाया। दैट द इलिटरेट, उन्होंने ऐसा कहा दैट द इलिटरेट मासेस डोंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन विच टेक्स्ट आर जेन्युइन एंड विच टेक्स्ट आर इंटरपोलेशंस। कि उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी को कहा और एक नया संस्करण लेके सामने आए, एनाइलेशन ऑफ कास्ट विथ अ रिप्लाई टू महात्मा गांधी। और उन्होंने उसमें कहा कि जो इलिटरेट हिंदू पीपल है दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड पीपल, गुड सेंट एंड गुड स्क्रिप्चर एंड बैड स्क्रिप्चर। और इलिटरेट लोगों को ये पता नहीं होता कि विच टेक्स्ट आर जेन्युइन, कौन से टेक्स्ट जेन्युइन है और कौन से टेक्स्ट है वो, और कौन से टेक्स्ट ये जेन्युइन नहीं है। So there should be distinction between the good text and the text which is not good. Further, he said that the saints could not effectively oppose the caste system itself, giving examples of Eknath and Gyanadev. कुछ धर्मगुरु है एकनाथ या ज्ञानदेव, इनको भी तकलीफ हुई समाज से, तो इसका वो जिक्र करते हैं। सो दिस एनाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश या जाति प्रथा नष्ट करने के ऊपर उन्होंने जो एनाइलेशन ऑफ कास्ट लिखा है, एक सर्वश्रेष्ठ एक प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक कहा जाता है। इसका प्रकाशन हमने जैसे इसके ऊपर चर्चा की 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया है और उसके साथ ही उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध उन्होंने किया। और यह एक ऐसा भाषण है जिसको सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को नहीं मिला। भाषण लाहौर के जात पात तोड़क मंडल की ओर से उनकी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में उनको मुख्य भाषण करने के लिए न्योता मिलने के बाद लिखा गया था। जब डॉक्टर साहब ने अपने प्रस्तावित भाषण को लिखकर भेजा तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाले जात पात तोड़क मंडल के कर्ता धर्ता काफ़ी बहस के बाद भी यह भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। शर्त लगा दी कि भाषण में आयोजकों की मर्जी के हिसाब से बदलाव किया जाए और अंबेडकर ने भाषण बदलने से मना कर दिया और उस सामग्री को पुस्तक के रूप में मई 1936 में खुद छपवा दिया। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस स्पीच, एनाइलेशन ऑफ द कास्ट। और इस प्रकार से जो अनडिलीवर्ड स्पीच है वो हमारे सामने आया एक टेक्स्ट के ज़रिए। और दिस प्रेजेंट टेक्स्ट, हमारे जो सिलेबस का ये जो टेक्स्ट है, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लार्ज सेक्शन रिटन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। it is an extract, it is a little section from Dr. Ambedkar's detailed speech. It represents one of the significant views regarding caste system। और एक कुछ अंश है जो इसका पूरा जो स्पीच है उसमें से लिया गया हुआ ये अंश है और एक इसके ऊपर भाष्य करता है। भारतीय जाति प्रथा के ऊपर भाष्य करने वाला एक अनडिलीवर्ड स्पीच है। Many Indian reformers, including Mahatma Gandhi, tried to remove untouchability, but they did not seem to realize that the act of people were merely the result of belief inoculated in the minds by Shastras, and people will not change their conduct until they cease to believe in sanctity of Shastras। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत से समाज सुधारक महात्मा गांधी जैसे भी जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को नष्ट करने में लगे हुए थे, उनको भी शायद ये ध्यान में नहीं आया होगा कि इसका जो मूल है लोगों के दिमाग में है। और ये जो लोगों के दिमाग में कहाँ से आया, तो बी.आर. अम्बेडकर साहब को ऐसा लगता है कि ये शास्त्रों में से आया हुआ है और कुछ शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है जो जातीय व्यवस्था को बढ़ावा उससे मिलता है। We must take the stand that Buddha and Guru Nanak had taken। और उनको ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध और गुरु नानक ने भी एक अलग सा स्टैंड लिया था, अलग सा अपना मत व्यक्त किया था, वैसे ही हमें करना चाहिए। They dared to deny
द अथॉरिटी ऑफ शास्त्रास। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने शास्त्रा के कुछ चीज़ें उन्होंने मान्य की थी। डॉक्टर अंबेडकर ऑल्सो बिलीव्ड दैट वी शुड हैव करेज टू टेल पीपल अबाउट व्हाट इज़ रॉन्ग इन हिंदू रिलीजन। और उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे धर्म में कुछ अगर गलत चीज़ें हैं तो वो बताने की हिम्मत हम में होनी चाहिए। वी शुड डेयर टू talk about the wrong things in the religion, in any religion. So we will discuss in detail what is annihilation of the caste. Dr. Ambedkar argues to change society without change in social order we can't achieve progress. जब तक समाज में बदलाव नहीं होता तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कम्युनिटी can't be prepared for defense or offense। और कोई भी समाज किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो नहीं सकता जब तक वो ऐसी समाज में ऐसी कुछ प्रथा परंपराएं हैं जो अच्छी नहीं है उसको जब तक बदलता नहीं। वी कांट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशंस ऑफ कास्ट। और जो कास्ट सिस्टम है ये ऐसी चीज़ है जब तक हम इसको नष्ट नहीं कर सकते तब तक हम अपने जो नींव है हमारे समाज के प्रगति की नींव है वो हम ऐसे नींव पर एक अच्छी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। वी कांट बिल्ड एनीथिंग। तो हम ऐसी व्यवस्था में कुछ ऐसी व्यवस्था की नींव जिस समाज की है उस समाज में हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते। एनीथिंग दैट इज़ बिल्ट अपॉन द फाउंडेशंस ऑफ कास्ट विल क्रैक। और जो ऐसी नींव के ऊपर हम जो कुछ खड़ा करेंगे वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। अंबेडकर आस्क अ क्वेश्चन ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस। और उन्होंने एक ऐसा सवाल किया है हम सभी को जिसका बहुत बड़ा महत्व है। कौन सा सवाल है वो? ही आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू एबॉलिश कास्ट एंड हाउ टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म ऑफ द हिंदू सोशल ऑर्डर। और उन्होंने ऐसा बोला है कि इस समाज में हिंदू समाज में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं और हिंदू समाज में जो ये जाति प्रथा है इसका उन्मूलन हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने दो सवाल पूछे हैं। देयर इज़ अ व्यू इन कनेक्शन टू दीज क्वेश्चंस एंड टू रिफॉर्म कास्ट। और उन्होंने कुछ ऐसे विचार प्रकट किए हैं इन सवालों को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट ही थिंक्स दैट वी शुड एबॉलिश सब कास्ट। ये जो उपजातीय व्यवस्था है, एक जातीय परंपरा में या जाति प्रथा में कुछ उपजातियां हैं उनको हमें उनका उन्मूलन पहले करना है, तभी तो हम बड़ी तौर पे या वी कैन एबॉलिश कास्ट only when we can abolish subcaste, because there are similarities in manners and status between subcaste than there is between the caste. क्योंकि he says that there are some similarities between the subcaste of caste and there is differences in different castes, but there is similarity in subcaste. मुख्य जाति में अलग अलग मुख्य जाति में वहाँ पे बहुत सारे भिन्नता हो सकती है, लेकिन जो एक मुख्य जात है उसके अंदर जो उपजातियाँ है उसमें बहुत सारी समानताएं रहती है, ऐसे वो कहते हैं। एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर, ब्राह्मण्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया आर सोशली ऑफ लोअर ग्रेड एज कंपेयर्ड विथ ब्राह्मण्स ऑफ डेक्कन एंड सदर्न इंडिया। उन्होंने ब्राह्मण कास्ट का हिंदू जो रिलीजन है उसमें ब्राह्मण कास्ट है उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो उत्तर भारत और मध्य भारत के जो ब्राह्मण हैं और जो दक्षिण और दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं उसमें कुछ फ़र्क है, ऐसा उन्हें लगता है। और Brahmins of north and central India are only cooks and water carriers, while the latter occupy high social position. Brahmins of north and central India are only cooks and water carriers. लेकिन जो दक्कन के और दक्षिणी ब्राह्मण हैं, Deccan and southern Indian Brahmins, they occupy high social position according to Ambedkar. The Vaishyas and Kshatriyas are intellectually and socially equivalent with the Brahmins of Deccan and southern India. लेकिन वैश्य और क्षत्रिय ये दक्कन और दक्षिणी डेक्कन एंड सदर्न इंडियन ब्राह्मण हैं
उनके बराबर के हैं, ऐसे उनका कहना है। देयर इज़ डिफरेंस इन फूड कल्चर बिटवीन द ब्राह्मण्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। और उनकी खान पान के बारे में भी हम सोचते हैं या पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं तो भी हमें कुछ खान पान में बदलाव नज़र आता है। ब्राह्मण्स ऑफ साउथ एंड डेक्कन आर वेजिटेरियंस एंड ब्राह्मण्स ऑफ कश्मीर एंड बंगाल आर नॉन वेजिटेरियंस। वो कहते हैं कि दक्षिणी ब्राह्मण ये शाकाहारी है और कश्मीर के और बंगाल के जो ब्राह्मण हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, ऐसा वो कहते हैं। On the other hand, Brahmins of Deccan and southern India have more in common so far as food is concerned with non-Brahmins as Gujaratis, Marwadis and Baniyas and Jains. लेकिन जो दक्खनी और दक्षिणी ब्राह्मण है, डेक्कन एंड सदर्न ब्राह्मण्स, उनका खान पान गुजरातीज, मारवाड़ीज, बनियाज एंड जैन्स इनसे मिलता जुलता है और उनसे वो सिमिलर है। बट देयर इज़ नो गारंटी ऑफ एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम थ्रू एबॉलिशन ऑफ सब कास्ट। तो हमने एक उदाहरण देखा जहाँ पे ब्राह्मण जो जिसमें अलग अलग प्रांत के जो ब्राह्मण हैं तो उनमें भी बहुत सारे हमें अंतर नज़र आते हैं। इससे उनको लगता है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो रेमेडी है कि एबॉलिशन ऑफ सब कास्ट इज़ नॉट एडिक्वेट एंड नॉट पावरफुल, ऐसे उनको लगता है। ऑन द कॉन्ट्री इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द कास्ट एंड इट विल मेक कास्ट सिस्टम मोर पावरफुल एंड मिस्चीवस। और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इससे उल्टा भी हो सकता है कि कास्ट सिस्टम एबॉलिश होने के बजाय, उसका उन्मूलन होने के बजाय और ये पावरफुल बने या और ये सशक्त बने, ऐसा भी उनको लगता है। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो एबॉलिशन ऑफ सबकास्ट में प्रूव रॉन्ग, ये गलत भी हो सकता है, ये उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। सो अंबेडकर ट्राइज अनदर प्लान ऑफ एक्शन टू एबॉलिश कास्ट सिस्टम एंड दैट इज़ टू बिगिन विथ इंटरकास्ट डिनर्स बट इट मे बी एन इनएडिक्वेट रेमेडी। फिर उन्होंने दूसरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया। वो क्या है कि उन्होंने सोचा कि इंटरकास्ट डिनर्स होने चाहिए, कि अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ बैठकर डिनर करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि इट शुड बी एन इनएडिक्वेट रेमेडी। फिर भी ये उतनी अच्छी रेमेडी नहीं हो सकती या उतनी कारगर रेमेडी नहीं हो सकती। बट रियल रेमेडी में भी इंटर मैरिज, लेकिन उससे भी फ़ायदेमंद क्या हो सकता है एबॉलिशन ऑफ कास्ट के लिए। तो ही थिंक्स दैट रेमेडी दैट इज़ इंटर मैरिज, इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज, एंड ही थिंक्स that fusion of blood can alone create the feeling of being kith and kin. It will create the feeling of kinship and it will dissolve feeling of being aligned or separate. जो अंतरधर्म और अंतरजाति विवाह करने के बाद लोगों में एक ही खून अपना है, ये जो फीलिंग आती है, फ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फीलिंग ऑफ बीइंग किथ एंड किन, इट विल क्रिएट द फीलिंग ऑफ किनशिप। बंधुत्व की भावना लोगों में आ सकती है एंड इट विल डिज़ॉल्व द फीलिंग ऑफ अलाइन, और जो हम उनसे अलग है ये जो भावना है उससे कम हो सकती है। सो इंटर मैरिज विल सर्व एज अ सॉल्वेंट ऑफ कास्ट सिस्टम, और उनको लगता है कि इट कैन बी इट विल प्रूव एज अ सॉल्वेंट। Caste will cease to be an operative force only when interdining and intermarriage will be common. और जब interdining and intermarriage, आपस में भोजन करना और आपस में विवाह करना, ये जब तक सामान्य नहीं होता तब तक ये एबॉलिशन ऑफ कास्ट नहीं हो सकती, और यही एक ऑपरेटिव फोर्स हो सकता है, यही एक कारगर उपाय उसके ऊपर हो सकता है, समाधान हो सकता है। एंड इंटरडाइनिंग एंड इंटर मैरिज आर रिपुग्नेंट, अनएक्सेप्टेबल टू द बिलीफ्स एंड डॉगमास ऑफ हिंदूज बिकॉज दे रिगार्ड इट एज अ सैक्रेड। लेकिन इंटरडाइनिंग एंड इंटर मैरिज को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। दे थिंक इट एज अ सैक्रेड।
Caste, according to Dr. Ambedkar, is not brick wall that prevent from mixing together, but it is notion and state of mind. जाति प्रथा उनके हिसाब से ये कोई दीवार नहीं है, ईंटों की दीवार नहीं है, पत्थर की दीवार नहीं है जिससे दो अलग अलग जाति के लोगों को बांट दिया जाता है, लेकिन ये इन लोगों में एक अदृश्य दीवार है, इनविजिबल वॉल, जो उनके दिमाग में है. दैट वॉल इज इन देयर माइंड, इन देयर नोशंस. ये उनकी एक मानसिक स्थिति है, उनकी ये धारणा है दैट वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम एंड दैट हैज़ टू बी removed from their mind. So what has to be done? That there should be notional change. Caste may be bad, it may be lead to man's inhumanity. So caste is bad for man and for the humanity. This may lead man to inhumanity. ये जाति प्रथा मनुष्य को अमानवीयता के तरफ लेके जाती है. Hindu follows caste because they are religious. Religion which has included the notion of caste may be the cause to follow caste system according to Ambedkar. और हिंदू लोग धार्मिक होते हैं and religion which has inculcated the notion of caste may be the cause to follow caste system according to Ambedkar. और जो धर्म है, जो इन मानवी दिमाग में ये जो भावना उत्पन्न करता है, दिस इज जस्ट अ रिलीजियस. कास्ट अकॉर्डिंग टू अंबेडकर इज जस्ट अ रिलीजियस एंड दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड ऑन द लेवल ऑफ रिलीजन. इफ वी हैव टू करेक्ट इट, देन वी हैव टू फाइट विथ एनिमी इज नॉट पीपल बट शास्त्रास विच टीच पीपल रिलीजन ऑफ कास्ट. अगर हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है तो लोगों में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की अवधारणा बदलनी चाहिए. और हमारा जो शत्रु है ये लोग नहीं है, तो वो उनका ऐसा मानना है कि एनिमी इज़ नॉट पीपल बट एनिमी इज़ शास्त्रा विच टीच पीपल रिलीजन ऑफ कास्ट. जो शास्त्र लोगों को आपस में बांटता है, जो शास्त्र लोगों में दीवार खड़ी कर देता है जाति की व्यवस्था की, वो सही में हमारा शत्रु हो सकता है. द रियल रेमेडी टू डिस्ट्रॉय द बिलीफ इन द कास्ट सैंक्टिटी ऑफ शास्त्रास. सो वी हैव टू, व्हाट इज द रियल रेमेडी? वी हैव टू डिस्ट्रॉय द बिलीफ इन द सैंक्टिटी ऑफ शास्त्रा. तो हमें क्या करना चाहिए कि वी हैव टू डिस्ट्रॉय दैट बिलीफ. दैट बिलीफ is that there is a sanctity in Shastras. So we have to destroy that belief in sanctity in Shastras. Reformers including Mahatma Gandhi did not realize that the acts of people are just the result of their belief in Shastras. और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारक उनको भी रियलाइज नहीं हुआ कि that the acts of people are just the result of their beliefs in Shastras. लोगों का जो आचरण है ये किसका फल है? तो ये लोगों के जो बिलीफ है शास्त्रास में, लोगों का जो शास्त्र में जो विश्वास है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल्स एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी. लाइक these are the acts of untouchability. That the root of untouchability is in Shastras according to Dr. Ambedkar. So it will not change until people won't believe in the sanctity of Shastras on which their conduct is found. जो लोगों का आचरण है किसके ऊपर आधारित है? शास्त्रा के ऊपर आधारित है. तो हमें लोगों का जो विश्वास है इन चीज़ों में, गलत चीज़ों में, वो कम करना पड़ेगा. Every man and woman should be freed from the threshold of Shastras. हर एक व्यक्ति को जो शास्त्र में बिलीव करता है, जो शास्त्र के बंधनों में जकड़ा हुआ है, हर ऐसे व्यक्ति को हमें समझाना पड़ेगा कि शास्त्र में जो कुछ गलत चीज़ें हैं उसमें से उनको they have to be freed from the threshold of Shastras.
We should cleanse their minds of the perennial notions founded on Shastras. उनकी जो गलत धारणाएं हैं उनको बदलना पड़ेगा. So people will interdine or intermarry without advice. और खुद ब खुद लोग जो है ये इंटरडाइन करेंगे, इंटरमैरिज करेंगे, उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. शास्त्रा शुड बी इंटरप्रिटेड लॉजिकली. वी मस्ट टेक stand like Guru Nanak or Buddha. We must deny authority of Shastras as did Buddha and Guru Nanak. और जैसे गुरु नानक और गौतम बुद्ध ने स्टैंड लिया, जैसे उन्होंने लॉजिकली ग्रंथों को और शास्त्रों को समझा, वैसे हमें कुछ चीज़ें डिनाई करनी पड़ेगी. वी हैव टू डिनाई द अथॉरिटी ऑफ शास्त्र एज डिड बुद्धा एंड गुरु नानक. शास्त्र में लिखा हुआ हर एक शब्द ये प्रमाण है ऐसे मानना भी गलत हो सकता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं. डॉक्टर अम्बेडकर सेज दैट एवरीवन शुड हैव करेज टू टेल पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदू दैट व्हाट इज़ रॉन्ग विद देम is their religion, and we should have the courage to tell whether there is a wrong thing in religion. We should have courage to tell what is wrong in that religion. The religion which has produced in them this notion of the sacredness of caste, और religion जो जातीय व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो जातीय प्रथा परंपरा को बढ़ावा देता है, ऐसी चीज़ों को हमें गलत मानना चाहिए. डॉक्टर अंबेडकर सेज एवरीवन हैज़ टू टेक एफर्ट्स रैशनली टू annihilate caste system. So reformation and development of society or nation is not possible with irrational and perennial notions founded on Shastras. उस देश की तब तक प्रगति या विकास नहीं हो सकता, या उस समाज का भी विकास नहीं हो सकता जब तक हम ऐसे इरेशनल और पेरेनियस नोशंस को, धारणाओं को लेके चलेंगे और शास्त्रा के जो कुछ गलत धारणा है उसको प्रमाण मानेंगे. So Dr. Ambedkar criticized the Hindu religion, its caste system and its religious texts which are male dominant and spreading hatred and suppression of female interest. He argues intercaste dining, intercaste marriage is not sufficient to annihilate the caste system, but the real method of breaking up the caste system was to destroy the religious notions upon which caste is founded. और उन्होंने जाति व्यवस्था की तत्कालीन परिस्थिति बताई है इस अनडिलीवर्ड स्पीच में, और उनका ऐसा कहना है कि कुछ धार्मिक धारणाएं हैं जिसके ऊपर जो जातीय प्रथा खड़ी हुई है, हमें उन अवधारणा को बदलना होगा, तभी ये समाज, तभी ये देश विकसित हो पाएगा, विकास उसका हो पाएगा. सो एवरीवन हैज़ टू थिंक अपॉन दिस essay. Why Dr. Baba Saheb Ambedkar has written this speech? What was the reality of the society, contemporary society? We have to think it upon, and we have to think upon what has to be changed and what are the things that are even present today which were present at the time of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Thank you for watching this show. Thank you for watching this video lecture, and have a nice day. If you like this video, you can hit the like button, you can share this video with other students, and you can subscribe my YouTube channel. Thank you everyone. Thank you very much.